है ना, stability of the fund can be minimized, है ना, very less. So by if the slope is increased, so be careful for the construction of the bench terraces. Okay, the terraces is an earthen embankment. ये क्या है? earthen embankment है, constructed across the slope. across the slope क्या करते हैं? इसको construct करते हैं, across the slope construct करते हैं, ठीक है ना, है ना, to control the runoff and minimize the soil loss. A terrace act as a intercept of the land slope and dividing the slope, है ना, sloping land surface into the strip. डिफरेंट स्ट्रिप में उसको डिवाइड कर दिया जाता है ना, डिफरेंट स्ट्रिप में डिवाइड किया जाता है. द लिमिट एंड लिमिटेशन ये होता है, इट्स डिपेंड अपॉन द हाउ मच यू हैव टू डेप्थ, हाउ मच यू हैव टू स्लोप. सो अकॉर्डिंग टू द स्लोप एंड डेप्थ ऑफ द कट, है ना, डेप्थ ऑफ द स्ट्रिप कैन बी वेरी. So the limited depth of the strip and slope length is naturally available based on the ability, है ना, रन ऑफ कैन बी रिड्यूस, है ना, जब रन ऑफ रिड्यूस हो जाएगा तो व्हाट हैपन, सॉइल इरोजन की संभावना जो है वो कम हो जाती है. ओके, तो ये था. सो टेरेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, टेरेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू and major type. First है broad base type. Base, and the base should be broad. Base should be broad and bench terraces. Broad base are generally adopted where the main purpose is either to store or remove, है ना, the retain water. Broad base का क्या purpose है? हाँ, हेलो Sir, terracing is something we have seen both in North India and South India, and you said that the slope should be between 6 to 33 degrees. Sir, what are the geological requirements for making a terrace? I mean, like the soil. Geological terrace is only for the sufficient amount, sufficient depth. If you have a sufficient depth, then you consider the terrace. What is the soil? What is the soil Any type of soil, except the alluvial or sandy soil. Okay, soil is not with the sandy. Soil not necessarily alluvial. आपको terraces तो है, आपको soil become sticky so that the slope can be maintained. ना स्लोपिंग लाइफ जो होगा आपके लिए एलिवेशन बहुत पॉसिबल नहीं होता वहां पर स्टीप हो सकता है, ब्लैक कॉटन हो सकता है, रेड सॉइल हो सकता है ना. तो whatever the soil is available, you can't change the soil, है ना, whatever the soil is available, you can construct the terraces by and you can practice of the cultivation whichever the soil available. Of course, in the slopy land, alluvial soil is not alluvial soil. If the alluvial soil is in the sloping land, then what happen? Runoff take place and all the soil can be washed away. So any type of the soil, not any type. Of course, the alluvial and the sandy soil is not on the hilly areas. Okay, sir. Thank you. Okay. Soil have the sufficient depth so that the root can be penetrate. According to that, you have to construct sufficient quantity of the depth is also soil depth for the well growing of the crop. Otherwise, if the soil is not sufficient depth, then what happen? Only the trench you can form, and by putting the trench, you can go the orchard farming, and the non type of the farming, orchard farming can possible areas. It depends upon the soil types. Okay. Okay, so the terraces broad base and the bench terraces. The broad base is adopted where the main purpose is either to
remove or retain the water, है ना, on the sloping land suitable for cultivation, whereas the purpose of bench terraces is mainly to reduce the soil slope. If the soil slope can be reduced, then what happen? Cultivation practices take place, है ना. So there are two type of the bench terraces, broad base and the bench terraces. And you see the broad base is further divided into the graded, and the graded bund or graded is for the purpose is to provide the grade for the removal of the excess water, है ना. And the grade provided and the label is for the cultivation practices, and the cultivation practices they absorb the sufficient amount of the water, and the graded bund further classified with the proper channel and without proper channel. Without proper channel means if the area will be more hilly, you can't go to for the channel for Anna, you can't provide the proper grade, Anna. So without proper channel, and where the proper channel is possible, so you construct the proper channel for the safe disposal of the excess water. Anna, and the bench terraces slope outward and a slope inward, and that is the Puerto Rican type of the soil. This is the American California type of the soil. It is also known as the California type of the soil, and it is developed in the California. That's why it is the name of the Puerto Rican type of the bench terraces. Okay, now you come to the different type of the bench terraces. Now the purpose, the main feature of the terraces are these are constructed across the slope to intercept the surface runoff and convey to each the stable outlet at the non-erosive velocity. At non-erosive velocity, reduce the length of the by splitting the slope length in a different part. The terraces practices is adopted. Terraces practice is adopted where the land slope is greater than 10%. Greater than 10%. Now, 10% or 6 to 33%. Where terracing farming is adopted. And the soil is the more I mean the high the practice is not feasible, particularly those hill slope where the soil depth is not sufficient. You see, the soil depth is not sufficient. If the soil depth is not sufficient, then cultivation practice is not possible. And in this hilly areas, this terrace farming is not possible and not constructed, because the terrace is constructed what purpose? For the cultivation practices purpose. Okay, if the depth is not sufficient, then it is not constructed. Since it involves the greater earthwork, therefore it is a costly work. It's a costly work. Not construction of the bench terraces is a costly work. So to minimize such type of the cost, generally the practices is done. But the limitation is if the slope is increased, the agricultural practices is not sufficient to retain the soil. Okay. Now the different type of the bench. बोला सर ये एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ क्लेज में क्या करेंगे सर? एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ क्लेज में जो अर्थवर्क करेंगे तो वो भी तो उसी पर्टिकुलर सॉइल का होगा ना, तो वो भी तो एक्सपैंड करके क्रैक कर जाएगा, तब इसमें टेरेसिंग या बंडिंग काम आएगा क्या? एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ सॉइल ब्लैक सॉइल जैसे जाता है पानी से या ड्राई कंडीशंस में क्रैक कर जाता है, तो उसमें सर टेरेसिंग और बंडिंग पॉसिबल है? देखिए जनरली उसमें भी पॉसिबल है. उसमें फिर क्या करना है ना कि आपको जो उसमें शोल्डर बंड जो प्रोवाइड करते हैं है ना, दैट प्रोवाइड द सफिशिएंट स्टेबिलिटी है ना. बंड को स्टेबल होने के लिए आपको सफिशिएंट स्लोप देना पड़ेगा. शोल्डर बंड का स्लोप वी कैन इंक्रीज सो दैट, देखिए आपको फिगर से समझाएंगे तो समझ में आएगा. सपोज दैट ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर. है ना. आप देखिए क्या है ना, ये दिस एरिया देखिए, देखिए ओरिजिनल लैंड स्लोप ये है, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है. दिस इज द ओरिजिनल लैंड स्लोप. ठीक है, ये आपका लैंड स्लोप हो गया. इस पोर्शन से कट करते हैं, इस पोर्शन में फिल करते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ से कट हुआ, यहाँ से सर अगर मटेरियल सेम रहेगा तो सर वो भी तो एक्सपैंड करेगा ना, स्वेल होने पर पानी.
नहीं अभी आप देखिए ना, अभी आपको बताते हैं। देखिए ये आप देखिए कि यहाँ इस पोर्शन से कट किए, इस पोर्शन पे फिल किए, है ना, ये फिल किए। अब देखिएगा ये जो ये देख रहे हैं ना, ये स्टेबिलिटी के लिए दिया गया, ये क्या दिया गया है, स्टेबिलिटी के लिए, है ना, सो डैट कि इसको इसके ऊपर वाटर भी रहे और एक्सपेंड भी करे, तो ये जो स्टेबल है इट कैन नॉट बी डैमेज, है ना, इट कैन नॉट बी डैमेज। सो द ये जो कट है इट्स डिपेंड अपॉन द व्हिच टाइप ऑफ द सॉइल, है ना। ये देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर बंड का स्लोप, राइजर, है ना, ये स्लोप बोलते हैं राइजर टू बेटर स्लोप एंड राइजर टू बेटर स्लोप। किसी किसी पोर्शन में ये राइजर टू बेटर स्लोप नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं कि अगर सॉइल स्टेबल है देन नो नीड टू प्रोवाइड द सच टाइप ऑफ द स्लोप, है ना। आप यहीं से वर्टिकल कट कर दिया जाएगा सो दैट कि आप देखिएगा यहाँ से इतना एरिया जो है कट कम इनटू द कल्टीवेशन। सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल दिस stability or the riser to better slope is provided to stability of this band, है ना। आप देख लीजिए दिस बंड, है ना, अगर स्लाइडिंग है ना, जहां पर कि सॉइल का स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो उसमें ये इस स्लोप को बढ़ाते हैं और बढ़ा करके स्टोन पिचिंग अगर यहाँ पर हम करेंगे तो इट्स कॉस्टली अफेयर्स, है ना। लेकिन अगर पॉसिबल होता है कल्टीवेशन प्रैक्टिस हम लोग कहाँ पर कल्टीवेशन होता है, ओनली दिस पोर्शन इज कल्टीवेशन, और ये सब पोर्शन जो है ये सब पोर्शन लॉस होता है। ये सब पोर्शन क्या है, लॉस होता है ना, एरिया कम इनटू द लॉस, है ना। तो ये लॉस है बट इट इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस टेरेसेस, ठीक है ना। टेरेसेस को स्टेबिलिटी करने के आता है, इसलिए जितने भी तरह के सॉइल है और सॉइल कैन पॉसिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेरेसेस प्रोवाइडेड द सेफ्टी मेजर्स, है ना। उसमें आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, स्लोप स्टेबिलिटी करना पड़ेगा, इसमें आपको वेजिटेटिव ग्रो करना पड़ेगा, इसमें आप स्टोन पिचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें स्टोन पिचिंग भी कर सकते हैं, सो दैट ये क्या है कि स्टेबल हो सके, ठीक। ओके सर। ये हाँ ये देखिए ये है लेवल बेंच टेरेसेस। लेवल बेंच टेरेसेस आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये स्लोपिंग आउटवर्ड है, ये स्लोपिंग क्या है, आउटवर्ड। आपको एक फिगर से हम दिखाते हैं, स्लोपिंग इनवर्ड आउटवर्ड समझ में आता है आप लोगों को। ये देखिए ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ये आउटवर्ड हो गया, ये क्या हो गया, आउटवर्ड का डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड। इनवर्ड ये इनवर्ड का डायरेक्शन होगा, इधर से इस पोर्शन से डायरेक्शन होगा। आप देखिए ये जो डायरेक्शन है इनवर्ड का डायरेक्शन है, क्या है ये, इनवर्ड, है ना, और ये आउटवर्ड, ठीक है। और दूसरा जो है फ्लैट, देख रहे हैं फ्लैट, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी, है ना, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल डेप्थ, टाइप ऑफ द सॉइल, है ना, ये उसके हिसाब से फ्लैट टाइप, स्लोपिंग इनवर्ड टाइप, स्लोपिंग आउटवर्ड टाइप इज बेंच टेरेसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, है ना। अब आप देखिए bench terraces where is constructed, level bench terraces is required the uniform ponding of the water, and level bench terraces same and to facilitate the uniform ponding sometimes this type of terraces is termed as the tabletop and orpadic terraces convey the same and such bench terraces level has been on top of the table, है ना, टेबल टॉप के तरह हुआ, उसमें no any slope provided, है ना, no any slope provided, ठीक है, that is known as the level bench terraces. Bench terraces will should be level and sloping inward, है ना, sloping inward क्या होता है आप समझिए, देखिए ये फिगर है, ये आपका इनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप है, लेकिन हम जब बेंच टेरेसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट इज अगेंस्ट द स्लोप,
स्लोप इस डायरेक्शन में है तो हमको अगेंस्ट द स्लोप, सो द अगेंस्ट द स्लोप इज नोन एज द इनवर्ड स्लोप। क्या कहते हैं इसको? इनवर्ड स्लोप। तो इनवर्ड स्लोप क्या होता है? हैवी रेनफॉल एरिया के लिए इनवर्ड स्लोप प्रोवाइड करते हैं। द वाटर कैन बी हैवी हो रहा है और इस पोर्शन से क्या करेंगे हम लोग? ग्रास वाटर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सो दैट द वाटर कैन बी पास थ्रू द bottom hill, not the top, bottom hill of the hill, है ना, उससे वाटर को पास करना है। सो द ग्रास वाटरवे वाई कंस्टिट्यूट ग्रास वाटरवे, ठीक है ना। आप इसको एग्जीक्यूट करिए, है ना, किस तरह से स्लोप है। रेनफॉल अकर हुआ, रेनफॉल अकर होने के बाद में क्या होगा कि स्लोप इस डायरेक्शन में दिए तो इस पोर्शन पे वाटर स्टेगनेट होगा और इस पोर्शन में क्या होगा कि हमने एक चैनल को प्रोवाइड करेंगे सो दैट द वाटर कैन बी कन्वे, है ना। तो इस तरह से आपको भी प्योर आपको जो है वो स्लोपिंग इनवर्ड, है ना। स्लोपिंग इनवर्ड ये जो जनरली फॉर द पोटैटो कल्टीवेशन जिसमें करते हैं उसके लिए होता है ना। एंड द वाटर लॉग एरिया में उसको किया जाता है। इन दिस केस द बेंच ट्रेसेस मेड in the inward slope to drain off the excess water as the quick as possible, ठीक है ना। These are especially suited for the steep slope. It is essential to keep the excess runoff toward the towards hill के तरफ में rather than toward the slope, है ना। This inward sloping bench terraces have the drain or the side, which had the grate along the length to convey the excess water to the one side, ठीक है। disposed of by the way stabilized vegetative grass waterway, है ना, vegetative waterway, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसको इनवर्ड स्लोपिंग इनवर्ड ट्रेसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। याद रखना है आपको कि ये हैवी रेनफॉल के लिए किया जाता है। द एरिया व्हिच हैड द हाई रेनफॉल, है ना, हैवी रेनफॉल में एक्सेस हैवी रेनफॉल के लिए किया जाता है इसको। जहां पर हैवी रेन किया होता है वहां पर इनवर्ड स्लोपिंग इनवर्ड बेंच ट्रेसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड स्लोपिंग आउटवर्ड, है ना, इसको लो रेनफॉल एरिया के लिए, है ना, जहां पर की सॉइल डेप्थ कम है ना, वहां पर जो है सॉइल डेप्थ जो है वो है द लो रेनफॉल एरिया के लिए जो है इसको किया जाता है ना, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड सॉइल हैज द नॉट गुड परमेबिलिटी, है ना, उसके लिए जो है उस एरिया के लिए ये स्लोपिंग आउटवर्ड जो है वह बनाया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है आपका हो गया प्रोटोकेन और कैलिफोर्निया टाइप ऑफ द बेंच टेरेसेस, है ना। दिस टाइप ऑफ इन दिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ द बेंच टेरेसेस क्या करते हैं, सॉइल को लिटिल अमाउंट ऑफ द सॉइल को एक्टिवेट करते हैं और उसको स्लाइडली जो है बेंच टेरेसेस को डेवलप करते हैं, है ना, पुश करते हैं टुवर्ड द हिल। कंटूर फार्मिंग कैन बी क्रिएटेड, है ना, मैकेनिकल बैरियर कैन बी क्रिएटेड, है ना। धीरे धीरे जो है उसको बेंच ट्रेसेस के फॉर्म में बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो है लेवल भी इसको कर सकते हैं। ये इट विल टेक द मोर टाइम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैलिफोर्निया टाइप ऑफ द टेरेसेस, है ना। इट इज एसेंशियल दैट द मैकेनिकल और द वेजिटेबल अक्रॉस द लैंड फॉर द सुटेबल इंटरवल, है ना, सो दैट इट कैन बी स्टेबलाइज्ड, तो आपने ये फोर टाइप आपने समझ आ गया होगा आप लोग को कि फोर टाइप जो है आपका लेवल, स्लोप इनवर्ड, स्लोप आउटवर्ड और जो है तीसरा जो है आपका हो गया प्रोटोरिकन टाइप बेंच टेरेसेस। तो इतने टाइप ऑफ द बेंच टेरेसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द सॉइल टाइप, क्लाइमेटिक पैरामीटर, सॉइल डेप्थ, स्लोप, है ना, उसके हिसाब से जहां पर जो सुटेबल होगा वहां पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फोर्थ नंबर कैलिफोर्निया टाइप ऑफ सर। हाँ देखिए कैलिफोर्निया टाइप में क्या है, द सॉइल इज एक्टिवेटेड लिटिल,
by little during the every plowing and gradually develop the bench terraces by pushing the soil downhill against a vegetative or the mechanical barrier led along the contour. Means है ना, धीरे धीरे उसको पुश करके आगे बढ़ाते जाते हैं, पुश करके so that it can be established, है ना. एक 1 year अगर किया करेगा तो it cannot be possible, or the soil can be wash away, but slightly धीरे धीरे करके जो है पुश डाउन करते हैं अगेंस्ट द, कोई अगर मैकेनिकल बैरियर है या कोई वेजिटेटिव बैरियर है, ठीक है ना, इस तरह से बनाया जाता है. दिस स्ट्रेसेस इज डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर ए ईयर, नॉट इन 1 ईयर, है ना. ये सब आपको 1 ईयर में बना करके कंप्लीट कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी. ये समझिए कि एक तरह से ये है ना, आप देखे होंगे कि किसी जंगल में या किसी रास्ते में फुटपाथ बन जाता है ना, कैसे, बाय द मार्क ऑफ द फूट, है ना. जब आदमी चलना शुरू करता है तो क्या होता है, एक फुट प्रिंट बन जाता है ना, तो एक फ्रो बन गया. तो you assume like that construction of the fro, but fro is not constructed, but some base, some width is laid down on the top of the on the sloping land, है ना. इस तरह से बना दिया जाता है, और इसमें बेसिकली इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, इट यूज फॉर द ऑर्चर्ड के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना, नॉट फॉर द paddy cultivation, potato cultivation, not like that. It is only for some vegetative or some fruits crop or some horticulture purpose के लिए इसको कर सकते हैं. It is essential that the mechanical or the vegetative barrier across the slope, it is essential, है ना, then it is possible, otherwise it is not possible. ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, हाँ, आपको क्या करना है कि इसके बाद हम ये कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ाएंगे आपको, है ना. नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना. आपको ये नोट्स प्रोवाइड मिल गया है ना. यू हैव टू स्टडी इट, है ना. नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसका डिजाइन करके दिया, ठीक है. हाँ, बोला जाए. हाँ, बोलो. Anybody, any problem? हेलो, बोलिए. आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. हाँ, आप जो है अटेंडेंस दे दीजिए ताकि हम उसको आगे का कार्रवाई करें, ठीक है. रोल 1.